So today we are going to do one example of trigonometric functions of second exercise, in which we are provided with cot x is equals to minus 5 by 12, where x lies in second quadrant, and we have to find the other values of trigonometric functions. Now, solution: cot x is equals to minus 5 by 12. We know that tan x is inverse of cot x, so tan x is equals to minus 12 by 5. We just draw a graph here. Here we have first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, and after school to college. Okay, so we have find the value of tan x. Now, we have already done this formula in class 10th, in which 1 plus tan square x is equals to secant square x. Now we know the value of tan x, so we will just substitute in this equation. So here we have 1 plus 12 by 5 का whole square is equals to secant square x. So 1 plus 144 by 25 is equals to secant square x. So 169 by 25 is equals to secant square x. So secant x is equals to plus minus 13 by 5. So we have two values of secant x. One is plus 13 by 5 and the other one is minus 13 by 5. Now, we have provided in the question that x lies in second quadrant. We know that in second quadrant only sin x and cosecant x are positive. All other trigonometric functions are negative. So secant x is equals to 13 by 5 and secant x is equals to minus 13 by 5. So our one value is secant x is equals to plus 13 by 5, in which x lies in second quadrant, which is not possible because in second quadrant only sin x and cosecant x are positive, as I have already told you. So this value is rejected. So secant x is equals to minus 13 by 5. Now we know that cos x is inverse of secant x, so cos x is equals to minus 5 by 13. So we have find the value of cos x also. Now we have to find the value of sin x and cosecant x. Now we have already studied this formula in class 10th. Sin square x plus cos square x is equals to 1. Now sin square x, we have to find this value. Cos square x, cos x we have already find, which is minus 5 by 13. So minus 5 by 13 का whole square is equals to 1. Sin square x is equals sin square x plus 25 by 169 is equals to 1. Sin square x is equals to 144 by 169. So sin x is equals to plus minus 12 by 13. So again we have two values of sin x. Sin x is equals to plus 12 by 13 and sin x is equals to minus 12 by 13. Now x is in सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन एक्स और कोसेकेंट एक्स पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 12 बाई 13 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई. सो वी हैव ओनली दिस वैल्यू. सो साइन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 12 बाई 13 एंड वी नो दैट कोसेकेंट एक्स इज इनवर्स ऑफ साइन एक्स, सो कोसेकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 13 by 12. Now we will be doing some formulas which are very important for trigonometric functions. First one is sin of minus x is equals to minus sin x. जो अंदर ब्रैकेट के माइनस है वो बाहर चल जाता है, माइनस sin x बन जाता है. cos of minus x, माइनस को वो cos पॉजिटिव बना लेते हैं. Now before proceeding all these formulas, पहले एक बात याद रखनी है कि cos जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में राजा होता है. तो cos ऑफ माइनस एक्स वो माइनस को पॉजिटिव बना लेता है, तो क्या आ जाएगा cos x. नाउ cos ऑफ x प्लस वाई, पहले cos अपने दोनों ले लेगा cos x cos y,
और पॉजिटिव को नेगेटिव करके साइन को दे देगा साइन एक्स साइन वाई. कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, सिमिलरली जैसे ऊपर किया था, और माइनस का पॉजिटिव, देन साइन एक्स साइन वाई. साइन में कैसे जाएगा हमारे पास, साइन एक्स प्लस वाई है, साइन पहले एक्स लेगा, वाई कॉस को दे देगा, तो साइन एक्स कॉस वाई, बीच में पॉजिटिव का साइन है, सो प्लस कॉस एक्स साइन वाई. नाउ साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस then cos x sin y. Tan of x plus y is equals to tan x plus tan y over 1 minus tan x tan y. Tan of x plus y, पहले tan x then tan y over 1 minus. Now tan 2x is equals to 2 tan x over 1 plus tan square x. Sin 3x is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x. Cos 3x is equals to 4 cos cube x minus 3 cos x. These both formulas are very important. Tan 3x is equals to 3 tan x minus tan cube x over 1 minus 3 tan square x. Now coming back to this formula, sin 3x is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x. इसमें क्या आएगा, पहले 3 आगे, जब 3 आगे आ गया बाहर, इधर क्या बच गया sin x, सो 3 sin x, बीच में माइनस, आगे हमने लगा दिया 4 और 3 को हमने ऊपर इसकी पावर में चढ़ा दिया, तो क्या बन गया -4 साइन क्यूब एक्स. कॉस 3x 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स. जस्ट इसका रिवर्स कर देना है, ये 4 कॉस क्यूब एक्स आगे आ जाएगा, माइनस का माइनस, और ये 3 कॉस एक्स पीछे आ जाएगा. नाउ tan 3x 3 हमने आगे ले आए, इधर क्या बच गया tan x. सो 3 tan x माइनस इसकी पावर 3 है, 3 की हमने tan में पावर चढ़ा दी, सो माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन tan x tan y. tan x माइनस y जैसे ऊपर किया था, tan x माइनस tan y, पहले tan ले लेगा tan x माइनस tan y, और फिर 1 प्लस साइन रिवर्स, जैसे इसमें साइन रिवर्स हुआ था वैसे इसमें साइन रिवर्स हो जाएगा, देन tan x tan y दोनों की मल्टीप्लिकेशन. नाउ cot ऑफ x प्लस वाई, cot x cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot x प्लस cot y. जस्ट इसका रिवर्स, जैसे tan ऑफ x माइनस वाई में जब tan अंदर जा रहा है दोनों के, तो हमारे पास जो बीच में इधर साइन है वही इधर रहता है, तो सिमिलरली cot ऑफ x प्लस वाई cot y प्लस cot x, और जब ये माइनस इधर 1 प्लस हो रहा है, इसमें -1 हो जाएगा जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे. नेक्स्ट cot ऑफ x माइनस वाई cot x cot y प्लस 1 cot y माइनस cot x. नेक्स्टली cos 2x is equals to cos square x minus sin square x, and cos 2x is equals to 2 cos square x minus 1 and 1 minus 2 sin square x. cos 2x के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, and these 3 are very important. Sin 2x is equals to 2 sin x, cos x is equals to 2 tan x over 1 plus tan square x. Now next we have 2 sets in which each set contains 4 formulas. पहले हम x plus y फॉर्मूला पे चलते हैं, जिनमें हमारे पास cos x plus cos y, cos x minus cos y, sin x plus sin y, sin x minus sin y है. cos x plus cos y है, तो हमने 2 आगे, जब भी x plus y वाले फॉर्मूलाज हैं तो हर एक में 2 2 2 आगे आएगा. 2 cos x plus y by 2 and cos x minus y by 2. जब cos x minus cos y है तो cos क्या है, राजा. जब भी cos के पास नेगेटिव आ रहा है बीच में, तो उसने क्या किया, माइनस आगे लगाया, 2 तो है ही, तो उसने क्या किया, साइन को भेज दिया, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2. साइन एक्स प्लस साइन वाई है, 2 तो लग रहा है एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूलाज में, तो साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2. साइन एक्स प्लस साइन वाई है, तो साइन ने एक्स प्लस वाई खुद लिया और कॉस को एक्स माइनस वाई दे दिया, डिवाइडेड बाय 2 कॉन्स्टेंटली हर फॉर्मूला में चल रहा है. साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 चल रहा है,
साइन एक्स माइनस साइन वाई है, तो साइन ने अपने आप को एक्स माइनस वाई दिया और कॉस को एक्स प्लस वाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज. नाउ नेक्स्ट जो सेट है हमारे पास, वो हम इस से इजीली डिराइव कर सकते हैं. इस वाले में जो x है वो इन वाले में हम x प्लस वाई बाय 2 होगा, और इसमें जो y है वो इस सेट में x माइनस वाई बाय 2 होगा. तो जहाँ पे हमारे पास 2 cos x cos y कहाँ आ रहा है, ये 2, ये पूरा x सब्सटीट्यूट किया और ये y किया. सो 2 cos x cos y इज इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस y एंड प्लस x माइनस y. Okay, now 2 sin x sin y, 2 sin x sin y is equals to माइनस हमने इधर भेज दिया, माइनस x को क्या कर दिया cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y. now 2 cos x sin y, cos x sin y, 2 cos x sin y is equals to sin of x plus y माइनस साइन एक्स माइनस वाई. 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 साइन एक्स कॉस वाई किसके इक्वल है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई. नाउ जो हमने फॉर्मूलाज अभी किए उनके बेसिस पर वी विल बी डूइंग वन क्वेश्चन इन विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री. तो साइन 15 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 45 minus 30 degree which will be equal to sin 15 degree. Now हमने फॉर्मूला किया था sin of x minus y, sin of x minus y which is equals to sin x cos y minus cos x sin y. तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें x हमारे पास 45 है एंड y हमारे पास 30 डिग्री है. सो साइन ऑफ 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री. नाउ वी नो साइन 45 इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2 रूट 2 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस. हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशंस होते हैं उसका क्या मतलब है, जब हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू किसी और साइन वाई की वैल्यू के साथ इक्वल होती है तो हमारे पास x क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू वाई. जब हमारे पास cos x इज इक्वल्स टू cos y होता है तो हमारे पास x की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस y. एंड व्हेन tan x इज इक्वल्स टू tan y देन x is equals to n pi plus y. These are our general solutions. Now we know जो पाई होता है वो क्या होता है 180 डिग्री, पाई बाय 2 इज 90 डिग्री, पाई बाय 3 इज 60 डिग्री, पाई बाय 4 45 डिग्री, pi by 6 30 degree, 3 pi by 2 270 degree and 2 pi is 360 degree. These are just the conversions of degrees into radians. These are much understandable. Now इसकी एग्जाम्पल करने से पहले we will just draw a graph here. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड है वी हैव फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री होता है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री किसके इक्वल है पाई बाय 2. सो हेयर पाई बाय 2. इधर हमारे पास 180 डिग्री होता है एंड 180 डिग्री किसके इक्वल है पाई. सो पाई
here we have 270 degree and 270 degree is equals to 3 pi by 2. Here we have 360 degree and 360 degree is equals to 2 pi. हमने कोई भी एंगल ले लिया थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई माइनस थीटा. अगर हम पाई के रिस्पेक्ट देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में वो पाई प्लस थीटा. फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम 2 पाई के रिस्पेक्ट देख रहे हैं तो वो होगा 2 पाई माइनस थीटा. ऑलराइट, ये ग्राफ हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए और ये कुछ भी नहीं है, इट्स द इजीएस्ट वन. जस्ट हमने एक थीटा लिया, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई के रिस्पेक्ट पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा होगा एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा होगा. नाउ वी विल बी डूइंग वन एग्जाम्पल. sin x is equals to root 3 by 2 and sin x is equals to minus root 3 by 2. These two are both different examples. Sin x is equals to root 3 by 2. We know that sin pi by 3 is equals to root 3 by 2. तो हमारे पास जो x है वो क्या आ गया, pi by 3. राइट, नाउ x हमारे पास पाई बाय 3 है, x मीन्स थीटा ओनली, सो थीटा पाई बाय 3 हो गया. हमारे पास साइन x की वैल्यू रूट 3 बाय 2 दी हुई है प्लस रूट 3 बाय 2 दी हुई है, मतलब पॉजिटिव है. वी नो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है. तो एक तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी, एक आएगी थीटा और एक आएगी पाई माइनस थीटा. वन इज थीटा एंड अनदर वन इज पाई माइनस थीटा. सो पाई माइनस थीटा क्या है, पाई बाय 3, सो इट इज 2 पाई बाय 3. तो हमारे पास जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो क्या है, पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3. These are our principal solutions. Nextly we have sin x is equals to minus root 3 by 2. We know sin pi by 3 is equals to root 3 by 2. Theta again हमारे पास क्या आ गया, pi by 3. Now in this we have minus root 3 by 2. हमारे पास जो sin की वैल्यू आ रही है वो minus root 3 by 2 आ रही है, मतलब नेगेटिव. sin नेगेटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो हमारे पास जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आएगा, एक पाई प्लस थीटा एंड अनदर इज पाई माइनस थीटा. सो पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस थीटा इज पाई बाय 3 एंड अनदर वन इज 2 पाई माइनस थीटा. सो 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3. सो हियर वी हैव 5 पाई बाय 3 and sorry it's 4 pi by 3 and here 5 pi by 3. Now we have two principal solutions, 4 pi by 3 and 5 pi by 3. Now we will be discussing general solutions. General solution में हम पहले वाली values use करेंगे, मतलब sin x is equals to root 3 by 2 में दो values आई थी प्रिंसिपल, पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3. इसकी फर्स्ट वैल्यू पाई बाय 3 एंड सिमिलरली साइन x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 बाय 2 में भी दो आई थी, 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3. तो इस पे भी हमने पहली वैल्यू ली 4 पाई बाय 3. ना जनरल सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, जब साइन x साइन y के इक्वल होता है तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू y. तो इसमें क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू y में हम प्रिंसिपल वैल्यू डाल देंगे पहले वाली, मतलब पाई बाय 3. नाउ सिमिलरली इन दिस x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू 4 पाई बाय 3. This is our general solution.